Today our topic is about dynamism or the dynamics of the world socio-economic and political arena. There are certain driving forces which govern the socio-political or the economic environment of the world. कि वो क्या forces हैं जो इंसान को, nations को, societies को मजबूर करती हैं to behave in a particular way. They cause certain clashes, conflicts in the world, difference of opinion, there are different behaviors in the world, or even they go at war. They are overall 12 dynamic forces. आज हम वो बात करेंगे. The whole world and the societal environment of this globe revolves around those 12 forces. These are the causes of certain happenings in the world. जो कुछ भी इस वक्त दुनिया में हो रहा है वो इसी के गिर्द घूम रहा है. जितनी डिस्कशंस हो रही हैं, जितना पेपर्स में लिखा जा रहा है, जितने डायलॉग्स हो रहे हैं, जितने वर्ल्ड वाइड इश्यूज हैं, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंसेस हैं, मीटिंग्स हैं, डिफरेंट अलायंसेस बने हुए हैं वर्ल्ड में. द सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायनामिज्म ऑफ द वर्ल्ड. नंबर 1, नेशनल इंटरेस्ट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. National interests are considered supreme, having precedence over all other considerations. ये उन सब पर हावी हैं. The powerful West even doesn't hesitate to legitimate the military coups and kingdoms if the new leaders happen to serve their national interest better than the democratically elected ones. कितनी बड़ी बात है. सारी दुनिया में डेमोक्रेसी को सुप्रीम करार दिया गया है. Particularly the West is the champion of democracy. लेकिन वो क्या वजह है कि they have given legitimacy to many monarchies and kingdoms in the world. That is their national interest. Unless until or till that kingdom or the monarchy serves the national interest of that superpower is not hesitant in according that legitimacy to that monarchy or the kingdom. Otherwise, intellectual or the pro-democratic people, I mean the students, they will criticize all this thing, what is happening in the name of national interest. Intellectually इतना unbiased होता है, इतना sincere होता है, इतना friendly in accordance with the interest of the globe and humanity होता है, उसकी तो driving force ही different हो गई ना. उसकी national interest नहीं होती, उसकी humanitarian interest होती. तो लिहाजा student answer sheet पर जो बैठता है तो वो प्रो ह्यूमैनिटी बैठता है. और दुनिया में अमन उस वक्त होगा, ग्लो वेलफेयर ग्लो में उस वक्त तब्दील होगा जब इंटरेस्ट इनसे निकलकर प्रो ह्यूमैनिटी हो जाएंगे. इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रो ह्यूमैनिटी की बात करेगा. ये मौजूदा दौर का इंटेलेक्चुअल प्रो ह्यूमैनिटी हुआ, वरना माजी का देखें मैकियावेली तो ये था कि वो किंग को बताता था कि आपने अपनी किंगशिप को परमानेंस कैसे देनी है. उसने कहा था क्रश योर एनिमी, crush all those who are against you if you want to give a strength to your monarchy and the kingship to prolong and last for all the years to come. This is the Machiavellian school of thought. The Prince उसकी किताब है, उसमें ये चीजें मेंशन की हैं. फिर दूसरी आप फोर्स देखें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. ये दुनिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेट हुआ. That's why we are talking about the status of women. Women rights की बात है. When we discriminate, यानी कोई चीज इस कंसिडरेशन पर किसी को ना दें कि उसका जेंडर डिफरेंट है, विद रेस्पेक्ट टू मेरिट, क्वालिफिकेशन, द स्किल, द एजुकेशन, द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग फुलफिल्ड दैट जेंडर. लेकिन आप हम डिस्क्रिमिनेट डिस्कार्ड कर दें, यू बिलोंग टू द फीमेल जेंडर. अब इंटेलेक्चुअल तो नहीं मानेगा ना, वो कहेगा उसमें क्या खराबी थी उसकी बायोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन में, वेदर दिस वाज हर चॉइस. देखिए जरा फिलोसॉफिकल भी होना पड़ता है. इफ दैट एंटिटी और दैट पर्सनैलिटी इज शी, व्हाई वी पेनलाइज हर बीइंग शी, बिकॉज दिस इज नॉट हर चॉइस. इफ द अदर एंटिटी और द अदर पर्सनैलिटी इज ही, बताएं हाउ वी कैन गिव क्रेडिट टू हिम, he made certain effort to become, I mean, the male gender. तो ना वो तो लॉजिकली बात करता है, तो लिहाजा यहाँ डिस्कार्ड कर देता है ऑन द लॉजिकल प्लेन्स एंड द फॉल्ट लाइंस.
You differentiate just on basis of things in which that person's contribution is nothing at all. That is nature's decision, that she was born with this biological makeup or with this color, with this height, color of the hair, the color of the eyes. तो सोसाइटी में डिफरेंस जब क्रिएट होगा वो तो उसकी हैबिट और बिहेवियर से हो. The word is affected by your behavior and the behavior is affected by your beliefs. So therefore create this belief. इस belief को आगे लेके जाएं जैसे pro humanity belief. और pro humanity का मतलब ये है कि any belief, any behavior is okay which is good for the society, for the humanity, for this globe. जो इसको बेहतर करता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सटेंड करता है और दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश करने का एक सोर्स बनता है. तो इज देयर इन ऑल कंट्रीज विद अ वेरी डिग्री, दो इट इज कंपैरेटिवली क्वाइट नॉन सिग्निफिकेंट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, it is there in the form of sexual harassment of the fair sex at the workplace and lesser salaries and wages in some of the countries, but it is quite common in the less developed world where the literacy rate is quite low. Rampant corruption is all over the world, but widely prevalent in the third world where the masses are illiterate and the institution of public accountability is either weak or not totally non-existent. Corruption का concept क्या है कि अंडर लॉ आपको एक चीज अवेलेबल है, लेकिन जो उस बंदे के पास अथॉरिटी है वो कहता है मैं आपसे ब्राइब लूंगा या इलीगल ग्रेटिफिकेशन का कोई और जरिया तलाश करता है, गैर कानूनी डिमांड करना या अपने आप की सेटिस्फैक्शन करवाना. दैट ऑल कम्स अंडर दिस कैटेगरी. ये रैम्पेंट है और ये अब्यूज एंड मिस यूज ऑफ पावर कहाँ है? सबसे ज्यादा थर्ड वर्ल्ड में है. वहां रूल ऑफ लॉ नहीं है. एमनेस्टी इंटरनेशनल को आप स्टडी कर लें, वो ग्राफ आ जाएगा सारा. आप देखेंगे इन सब के पीछे ना लिटरेसी होगी. व्हाट इज द लिटरेसी लेवल? और लिटरेसी जैसे हमने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेसिकली लिटरेसी, व्हाट द लिटरेसी डज टू अस, दैट ब्रिंग्स, हम ऑलवेज से टू थिंग्स. नंबर वन, इट गिव्स यू अवेयरनेस अबाउट योर राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ दोज हु आर इन पावर और एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स. एंड नंबर टू, courage to fight for your rights. ये करती है लिटरेसी. दुनिया में वाइड स्प्रेड इलिटरेसी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बताऊं. चौथे नंबर का डायनामिक फोर्स. और नॉन क्वालिटी एजुकेशन इन द अंडरडेवलप्ड वर्ल्ड टेलिंग अपॉन नेगेटिवली बोथ ऑन पॉलिटिको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द ओवरऑल गवर्नेंस. सारी थर्ड वर्ल्ड का बेरागर किस वजह से है? ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ना ओवरऑल गुड गवर्नेंस है. क्यों नहीं है? कि मासेस क्वेश्चन करने की सलाहियत ही नहीं रखते, प्रोटेस्ट करने की सलाहियत ही नहीं रखते अगेंस्ट ऑल द हाई हैंडेडनेस. दे हैव लर्नड द लर्नड हेल्पलेसनेस. उन्होंने ये चीज सीख ली है, उनको सिखा दी गई है कि आप हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकते, बेहतर है सरेंडर कर दें और यस कह दें व्हाट एवर वी से. दिस इज गोइंग ऑन इन द थर्ड वर्ल्ड. बिल आकर वो सरेंडर कर जाते. इनएविटेबिलिटी का लेवल आ जाता है कि ये जो हम पर आ गई है चीज, हमें एक्सेप्ट करना है. अंदर से हम नहीं चाहते, बट वी हैव टू से यस टू देम. दे आर वेरी पावरफुल पीपल. द अपसर्ज ऑफ मिलेनियल सोशलिज्म. अब देखें, ये नहीं है कि अमेरिका आया तो सुपर पावर, वो आइडियल स्टेट में. आइडियल स्टेट हैज येट टू बी क्रिएटेड इन द वर्ल्ड, येट टू emerge एट द ग्लोबल लेवल. अभी देखें अपसर्ज ऑफ मिलेनियल सोशलिस्ट इन द यूएसए ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसिव कॉलेज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. अगर जो वेलफेयर स्टेट है लेकिन हायर एजुकेशन एक्सपेंसिव है. इसी तरह आप अगर इंश्योर्ड नहीं है हेल्थ में, इंश्योरेंस के भी पैसे देने पड़ते हैं, तो आप प्राइवेटली तो अमेरिका में इलाज नहीं करवा सकते, इतना एक्सपेंसिव है. तो फिर नौजवान जनरेशन में एक प्रोटेस्ट क्रिएट हुआ कि आप हमारी कॉलेज एजुकेशन को सस्ता करें और इसी तरह जो हेल्थ केयर है उसको अफोर्डेबल करें. वाइडनिंग रिच पुअर गैप and abnormal increase in the number of elderly people have given impetus to this school of thought. वो जो इदारों के सरबराह हैं, एम्प्लॉयर हैं, वो बड़े रिच हो जाते हैं, बिजनेस सेटअप किए हुए हैं. हर बंदा तो बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता उस तरह, और ओनर नहीं हो सकता. तो जो एम्प्लॉय हैं उनकी आमदनी लिमिटेड होती है. चूंकि वो रेडिली अवेलेबल है इसलिए एम्प्लॉयर ज्यादा देता नहीं है. वो एम्प्लॉयर होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन माइंडसेट में.
तो वो कहता है जब मुझे इतनी तनख्वाह देने पर बंदा मिल जाता आसानी से, मैं क्यों ज्यादा दूं। फिर वहां बहरहाल गवर्नमेंट ने इंटरफियर करके बताया कि दिस इज द मिनिमम वेज इन अमेरिका। और दुनिया में ये देखा गया है कि हाइजीन के इजाफा होने से क्योरेबल डिजीज जो हैं उनसे जो मौत होती थी वो कम हो गई हैं। तो ओवरऑल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट हैज क्रॉस्ड 85 इन ऑल द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो उनकी वो लायबिलिटी का लेवल बढ़ जाता है स्टेट पर, और फिर स्टेट को एक्सपेंस करने पड़ते हैं उन पर, उनकी इकोनॉमीज नीचे चली जाती। जैसे इशूलेस कल्चर है, इशूलेस कल्चर कहते हैं जहां बच्चा पैदा ना करने की कल्चर हो। सारी वेस्ट इशूलेस कल्चर की तरफ जा रही है। वेस्ट इज डिक्लाइनिंग इन रिलेटिव टर्म्स, दुनिया की बहुत बड़ी ये फोर्स है। ये भी सैमुअल कह गया कि वेस्ट हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन रिलेटिव एंड ईस्ट इज एमर्जिंग नाउ। ईस्ट क्या है? चाइना, इंडिया, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, इन सारों को मिलाकर देखें तो चाइना अकेला ही छा गया है। उसके BRI प्रोजेक्ट ने दुनिया को हिला कर रख दिया, आई मीन वेस्ट को। इसलिए कि वेस्ट का जितना इन्फ्लुएंस था जिन कंट्रीज में, वो सारे के सारे BRI का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मुकाबले में उनको B3W लाना पड़ा, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड।